میں آپ کے سامنے اس لیے لائیو آیا کہ ابھی میں غلام نبی آزاد صاحب کا بھاشن سن رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹیاں چینج کرتے ہیں لوگ، ان پارٹیوں کے لیڈرز کون ہیں، ان پارٹیوں کے لیڈر ہے بھی نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ جو لوگ پارٹیاں چینج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان پارٹیز میں کوئی لیڈر نہیں ہے، جبکہ جموں کشمیر کے عوام نے غلام نبی آزاد صاحب کو چنا تھا اپنا لیڈر، فاروق عبداللہ صاحب کو اپنا لیڈر چنا تھا، محبوبہ مفتی جی کو لیڈر چنا تھا، مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب کو لیڈر چنا تھا، مرحوم مفتی محمد سعید صاحب کو لیڈر چنا تھا، اور عمر صاحب کو لیڈر چنا تھا، اور اس وقت بھی ہے۔ لوگوں کی بڑی آشائیں ان لیڈرز کے لیے جڑی ہے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں، اگر غلام نبی آزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لیڈرز کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا گاؤں کہاں ہے، کون سا راستہ کہاں نہیں بنا ہے، کون سے گاؤں میں راستہ نہیں گیا ہے، آخر ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی لیڈر جموں و کشمیر میں ہے وہ صرف اور صرف کانگریس کے لیڈرز ہیں، نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں، پی ڈی پی کے لیڈرز ہیں۔ جس طرح کانگریس کے لوگ، پی ڈی پی کے لوگ ایگری کرتے ہیں ان کی بات کو، لیکن بحثت کشتواڑی، بحثت جموں کا ایک، جموں پروونس کا ایک اور جموں اینڈ کشمیر کا ایک ناگرک ہونے کے، میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی بہت وجوہات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ان اپلائیڈ یوتھ کا کارن اگر کوئی ہے، وہ یہی تین جماعتیں ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کیا، انہوں نے اپنا سوچا، اپنے پریوار کا سوچا، اپنے خاندان کا سوچا۔ آپ مجھے بتائیے، کانگریس کے جتنے بھی یہاں پر نیتا جنہیں دگج کہا جاتا تھا، جو ٹھیکیداری کرتے تھے اور آج یہاں پر کیبنٹ منتری تک وہ پہنچے، تو لوگوں کا مائنڈ یہ بھی ڈائیورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کو انہوں نے صرف اور صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے اپوزیشن کرنے کو لگایا ہے، مودی جی کی ان باتوں کی طرف لگایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کام کیا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی جو کرنا تھا وہ کر رہی ہے۔ میں تمام پارٹیوں کو اپنے اس بے روزگار نوجوانوں کا نشانہ بنا رہا ہوں، اور یہ نشانے پر بھی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری ماتر بھومی ہو، ہماری جنم بھومی ہو،
तमाम चीज़ों में हमें इन्होंने पीछे रखा है। अब मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स आप देखेंगे हमारे जम्मू और कश्मीर में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, इनके सभी अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सभी एक तो मुलाजमत करते हैं, दूसरा ठेके भी उन्हीं को मिलते थे और मिल भी रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। ये राजनेता खुद भी ठेके कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज के साथ इनकी सांठ-गांठ है। और तमाम खानदान के खानदान इन्होंने अपने खानदान के तमाम बूढ़े जवान औरतें बच्चे सभी को एडजस्ट किया। जो गरीब का हक था, जहां पर गरीब के बेटे को पढ़ाई के लिए बेचना था, वहां पर उन्होंने अपने खानदान के बच्चे भेजे, क्योंकि वो उन लोगों का हक था जो वोट करते थे, जो एक लीडर को चुनते थे। इन्होंने अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भेजा और ट्रेनिंग करवाई, और पता भी था कि फलानी इस महकमे में ये पोस्ट निकलने वाली है, वो पोस्ट निकलने वाली है। वहां पर इन्होंने अपने बच्चों को एडजस्ट किया। ये मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस आज दावा कर रही है कि जैसे कि हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने हमेशा आउट ऑफ जेंड के काम किया है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बाहर काम किया और अपने खानदान को इन्होंने तमाम सुविधाएं प्राप्त की जो उनको चाहिए थी, ताकि फैमिली में अगर एक गरीब होगा तो उसमें, अगर उस फैमिली का एक कोई गरीब शख्स होगा तो वो फैमिली को थोड़ा ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश होती है। मेरा मतलब है, अगर मेरी फैमिली में कोई गरीब होगा, मुझे शर्म आएगी कि मेरी फैमिली में ये गरीब है, तो मैं उससे बात भी नहीं करूँ। इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को भी साथ साथ अपने बराबर रखने की कोशिश की, उनको फ़ायदा दिलाया। इवन की 1990 से लेकर आज तक हमारे हक, हमारे राइट्स छीन कर इन्होंने अपने खानदान को दे दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। आप देखो, जिस भी खानदान का कोई लीडर बना, उसने सबसे पहले अपने खानदान का काम किया। उसने सबसे पहले अपने भाई बहनों को रोजगार मयस्सर किया, क्योंकि सबसे पहले ये अपना घर बनाते हैं। लोगों की कोई फिक्र नहीं होती। लोगों में वो ऐसे ऐसे लोगों को फायदा देते हैं जिनसे, जो चापलूसी करने में माहिर होता है, जिसने अपनी शर्म जो है खाई होती है, मतलब शर्म नहीं होती उस इंसान को जो चापलूस जिसे कहा जाता है, चापलूसी में जो माहिर हो। वही चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थी, वही चीज पीडीपी में भी है। पीडीपी के लोगों को भी फायदा मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी फायदा मिल रहा है, और कांग्रेस के लोगों ने भी फायदा उठाया। और आज उनकी पूरा जो खानदान है वो सेटल हो गया है। और लोगों को खुद तो वो खिलाफत भारतीय जनता पार्टी की नहीं करते हैं, लोगों को पिक करते हैं। लोगों को इस वक्त खुद बोलना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, सिर्फ जुमलाबाजी की है। ये सिखाया जाता है लोगों को, लेकिन उसके बरक्स मैं भारतीय जनता पार्टी के
लीडर साहिबान को भी ये कह देना चाहता हूं, माना कि कांग्रेस ने हमें लूटा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें लूटा था, हमारे हुकूक हमारे राइट्स अपने खानदान को दिए, हमारी पढ़ाई ज़ाया की, हम बेरोजगार रहे, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिश्तेदारी, सिर्फ दोस्ती, सिर्फ चापलूसी करने का उनको फायदा मिलता है। जैसा कि मैं हर रोज लाइव आता हूं, अपनी मेमोरी खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे अपने जहन से ये चीज़ें बोलने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ जो इत्तिसाल किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अब बीजेपी भी वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया था और जो एनसी पीडीपी ने किया था। पीडीपी और बीजेपी को इसलिए मैंडेट दिया गया था कि ये लोगों के काम करेंगे, और ये लोगों के काम करने की बहुत सारे वादे, बहुत सारे बातें करते थे कि अब हम लोगों को ये देंगे, लोगों को वो देंगे, लोगों का हक हम छीन कर लेंगे। ऐसा दिखने को कुछ नहीं मिला। अलबत्ता अपने घर इन्होंने पीडीपी टूटी, अपनी पार्टी तैयार होगी, क्योंकि इनको पब्लिक के साथ कोई, आम आदमी के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं है। इनको सिर्फ वोट बैंक का सिस्टम चाहिए और हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, ताकि इनका जो खानदान है वो दिन ब दिन प्रतिदिन तामीर और तरक्की करे। और आज की डेट में देखिए, जिन लोगों को चप्पल पहनने की औकात नहीं है वो मर्सिडीज में घूमते हैं, वो क्या। और जो लोग हुब्बे वतनी का जज्बा रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हुब्बे वतनी का जज्बा हमारे अंदर है, पहले मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं, हुब्बे वतनी किसी के दिल में नहीं है, किसी को अपने देश की दर्द नहीं है। कोई हिंदुस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ नहीं ले जाना चाहता है, ना हिंदुस्तानियों को। सभी अपने घरों के लिए लगे हैं, सभी ने अपने घर बनाए हैं, जितने भी लीडर्स हैं। और उन लीडरों को लाया जा रहा है, अब दिल्ली से लाया जा रहा है यहाँ पर लीडर्स बनाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करना था वो कर रही है। उनका क्या मुद्दा मकसद था, वो उस मुद्दे मकसद पे काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी अगर कोई गुनहगार जमात है वो कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी है, वो क्या कहते हैं, पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो बीजेपी कभी जम्मू कश्मीर में आ ही नहीं सकती थी, उसको मैंडेट दिया गया। जब तक न लोग तंग आ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गए, तब तक लोगों ने भी अपना जो कसम उठाई थी कि इस बार हम छठी का दूध याद दिलाएंगे कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी को, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को, और जिताया बीजेपी और पीडीपी को। और जब इन्होंने एकॉर्ड कर लिया, क्योंकि अपना अपना मुद्दा मकसद था, अपना अपना मैनिफेस्टो था। एक मैनिफेस्टो में 370 तोड़ने की
क्योंकि 370 उन्होंने तोड़ना था, उन्होंने तोड़ा। दूसरे में 370 बचाने की बात थी, लेकिन अगर पीडीपी को पता था कि बीजेपी 370 तोड़ेगी तो क्या जरूरत थी पीडीपी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गुनहगार जो जमाते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, और पीडीपी के पीछे जो है कांग्रेस पार्टी है। आज जब मैं ये सुन रहा था गुलाम नबी आज़ाद साहब की बातें, हमें भी पता है कौन से गांव में रोड नहीं है। यही कांग्रेस है जिन्होंने मड़वा से लेकर मड़वा को वो रोड नहीं दिया था, अलबत्ता पाडर को रोड दिया था। इस वक्त भी पोंतवाड़ा के लोग तरस रहे हैं रोड के लिए, रोड नहीं बन पा रहा है। अगर इनको सचमुच जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का दर्द है, जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैनों का दर्द है, ये वैसा करते, ये वो नहीं करते जो इनको शोभा नहीं देता। क्योंकि ये एक ही थाली के चटे बटे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी पार्टी हो, चाहे वो एनसी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी, सिर्फ और सिर्फ ये मजहब और धर्म पे सियासत करते हैं। डेवलपमेंट की बात इनसे करो, डेवलपमेंट की बात इनको पता ही नहीं है। डेवलपमेंट क्या चीज होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसी की जाती है। आरडीडी डिपार्टमेंट के करप्ट से करप्ट ऑफिसर इनके दाएं बाएं बैठे होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर इनके दाएं बाएं बैठे होते हैं, और ये लोगों को कहते हैं कि हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन फ्री भारत, कांग्रेस फ्री भारत। और जबकि 38% जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में लोग हैं, और 47% लोग जो है वो कांग्रेस के हित में। सोचिए कब कांग्रेस को मुफ्त, कांग्रेस से मुफ्त कब इस भारत को किया जाएगा, कब इनकी आइडियोलॉजी को खत्म किया जाएगा, कब यहाँ की पीडीपी जो है जब वो सत्ता में होती है तो वो मुसलमानों को टारगेट बनाती है खुद ब खुद, और जब सत्ता से बाहर आई तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में लगी, चाहे वो कुछ भी बोले उनके पीछे वो लगी। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तमाम पार्टियों के पीछे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अपनी पार्टी जो कि ऑलरेडी इनकी पार्टी है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, जैसे कि बी पार्टी पीडीपी को कहा जाता है, मैं समझता हूं सी पार्टी जो है अपनी पार्टी है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में अकॉर्ड कर रही है। मुफ्ती साहब ने और कांग्रेस ने और पैंथर्स पार्टी ने जिस वक्त अकॉर्ड किया था, उस वक्त भी यहां का माहौल खराब हुआ था। जब तक मुफ्ती साहब थे तब तक कोई अशांति नहीं थी जम्मू और कश्मीर में। जब आजाद साहब आए उसी वक्त से अशांति फैली, तो वहां पर बम बम बोले के नारे जो लगे थे उस वक्त, तो वो दौर भी देखा लोगों ने। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी का अकॉर्ड हुआ। आप मुझे बताइए
चिकन और मटन को एक साथ बनाया जा सकता है? ये एक मिसाल मैं दे रहा हूं। चिकन और मटन को क्या एक साथ बनाया जा सकता है? और उसका टेस्ट कैसा होगा? जबकि पीडीपी को पता था कि 370 टूटेगा और वो टूटने वाला है, और 370 जो था वो तोड़ने वाले हैं। और जिस पर इनको आपस में भी इख्तलाफात हुई, जब यहाँ पर एजिटेशन कुछ हुई ऐसी, और इन पीडीपी वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ के लोगों को दुख देने के लिए। अगर एक बार पीडीपी और बीजेपी का रिश्ता टूट गया था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो मरहूम इस दुनिया फानी से चले गए थे, तो उसी वक्त ये टूट गया था। तो दूसरी बार क्या जरूरत थी इनको भाजपा और पीडीपी की हुकूमत यहां पर लाने की? अगर सही माने में ये लोग सके होते जम्मू कश्मीर की आवाम की, ये उसी वक्त अकॉर्ड करते। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तारागामी साहब, ये तमाम लोग मिल जाते। ये जिस तरह दिल्ली में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, अगर वहां पर एक चीफ मिनिस्टर काम कर सकता था, क्या यहां पर चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकता था? आखिर उस वक्त ये अकॉर्ड क्यों नहीं हुए? उस वक्त पीडीपी ने क्यों नहीं माना? उस वक्त कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं माना? उस वक्त क्या यहाँ पर लोगों के लिए ये अपने कुर्सियां त्याग नहीं देते? क्या वजूहात है? कुर्सियों के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का सौदा कर दिया। और आज कहते हैं, आज आज़ाद साहब बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, और जिसमें सुरूड़ी साहब का नाम लिया जा रहा है। और सुरूड़ी साहब को शायद ये दो ही रह चुके हैं, एक तो सुरूड़ी साहब, एक विकार रसूल वानी, और एक गुलाम नबी आज़ाद साहब। तो यही लोग क्या हमारे जम्मू कश्मीर को चलाएंगे? क्या आने वाले समय में हमें यहाँ पर जो मुस्लिम वोट्स हैं वो उनको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर पार्टियों के ऊपर पार्टियां बनेंगी? कब तक हम ऐसा होने देंगे? हम पे तो सियासत हुई, हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हुई, हमें सियासत में आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा सियासत में। और सियासत आज तक सियासत की है ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, और आगे भी करेंगे। लेकिन साथ ही में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी सियासत जो है वो किश्तवाड़ और किश्तवाड़ियों के लोगों की फलाह और बहबूदगी के लिए है। यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मेरी जो सोच है, इंशाअल्लाह ताला उस सोच को मैं पाए तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे ना मंत्री बनना है, ना संतरी बनना है, न मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की बदौलत और माँ बाप की दुआओं से मेरे पास बहुत कुछ है। सिर्फ एक हसरत है कि मैं किश्तवाड़ के लोगों के काम आऊं, ताकि मेरा नाम जो है जिंदा रहे। जिस तरह मेरे बाप का नाम जिंदा है, उस तरह मैं अपना नाम जिंदा रखना चाहता हूं। क्योंकि खिदमत खलक जो है वो सबसे बड़ी इबादत है। लोगों के काम आना सबसे बड़ी इबादत है। वो मेरे अल्लाह को भी पसंद है और मेरे नबी को भी पसंद है। और जो नबी और अल्लाह को पसंद होगा, सोचे उस इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। मुझे वाहवाही की ज़रूरत नहीं, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे किश्तवाड़ के लोग जो है सर उठाकर जिएं,
نہ کہ سر نیچا کر کے. ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی کوئی متبادل ہے، ہمارا بھی کوئی لیڈر ہے جو ہماری لیڈ کرتا ہے. میں آپ لوگ تمام لوگوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان سیاستدانوں سے بچیے جن کو آپ بار بار آزمانے جا رہے ہو. مت آزمائیے. ایک بار آزمایا جاتا ہے، 2 بار آزمایا جاتا ہے، 3 بار آزمایا جاتا ہے. جب چوتھی بار آزمانے لگو گے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، سب کچھ دیا ہے، سوچ سمجھنے کی اور دیکھنے کی شمتا دی ہے. تو جب ہم وہی کریں گے اپنے مفاد کے لیے، میں اس وقت جسے ووٹ بھی نہیں کرنا ہوگا اسے ووٹ کروں. جو میرے خلاف جائے گا، میرے گھر کے خلاف جائے گا، میں اسی کو ووٹ کروں گا. اور مجھے پتہ بھی ہوگا یہ میرے گھر کے خلاف ہے. تو سوچئے کہاں جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہمارے بھائی ہمارے یہاں کشتواڑ میں ہے، ضلع کشتواڑ میں، وہ ایک جٹ رہے، ایک ساتھ رہے اور امن اور شانتی کی دعا ہمیشہ کیا کریں. تاکہ امن ہوگا تبھی لوگ خوشی سے جئیں گے، شانتی ہوگی تبھی سکون ملے گا. تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. وہ اللہ اگر مہربان ہوگا تو گدھا پہلوان ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں یہاں پر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب نئی نئی پارٹیاں یہاں پر آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ سمندر ہو، ندیاں جو نالے ہو، ندی نالے، دریا ہو، آخر انہوں نے سمندر میں ہی جانا ہے. اس وقت ہمارا جو پردھان منتری ہے جناب مودی جی، اگر کوئی کچھ بھی کرے، کوئی بھی پارٹی کا لیڈر جو بھی ہوگا، اسے آخر وہیں پر جانا ہے جہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا صحیح مانگ کر یہاں پر لانا ہے. تو میری اس بات کا کچھ مطلب ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ ایک اچھا متبادل ہونا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کہ آزاد صاحب بول رہے تھے، آزاد صاحب کو اگر اتنی ہمدردی تھی، دوست ہیں اس وقت پردھان منتری جی کے، تو ہمارے یہاں پر ضلع کشتواڑ میں 6 پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو کیا وجوہات ہے پورے جموں کشمیر کے لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ان 6 پروجیکٹوں میں؟ یہاں سے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، یہاں کے بچوں کو روزگار ہی نہیں مل رہا. کیا وجوہات ہے؟ اس لیے میں آپ کے مادھیم سے غلام نبی آزاد صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آزاد صاحب، آپ ہمارے ان امپلائڈ یوتھ جو یہاں پر ضلع کشتواڑ میں اور اندروال میں جو بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو روزگار دلانے میں اپنا یوگدان پراپت کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی میں آپ جو کہہ رہے ہو، واقعی میں آپ ہمارے ہمدرد ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طرف سے مودی جی کو کہہ کر یہاں کے لوگوں کو روزگار دلائے، کیونکہ آپ کی دوستی ہے. کیونکہ کانگریس والوں نے بھی یہ کہا کہ مودی جی اور ہمارے آزاد صاحب کی دوستی ہے، اور آزاد صاحب کے لیے ہمارے جو مودی جی ہیں وہ رو پڑے تھے. اچھی بات ہے، اگر کیونکہ آپ کا بھی پردھان منتری ہے، میرا بھی پردھان منتری ہے، میرے ضلع کشتواڑ کے تمام واسیوں کا پردھان منتری ہے مودی جی. ہمیں
फ़ख्र है उन पर कि वो हमारे प्रधानमंत्री है। अगर हम नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो हमारे प्रधानमंत्री है, फिर भी वो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। तो लिहाजा मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है गुलाम नबी आज़ाद साहब से, सुरूड़ी साहब से, सजाद साहब से और यहाँ के बाकी जो दिग्गज नेता, जिन्हें दिग्गज नेता कहा जाता है, बड़ा दिग्गज नेता यहाँ के जो हैं, उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाया जाए इन प्रोजेक्ट्स में। वरना गिनती के लिहाज से अगर देखा जाए 600 से ऊपर लोग यहाँ के प्रोजेक्टों में नहीं लगे हैं। 600 से ऊपर यहाँ के जितने भी लोग हैं, 600 के आसपास लोग जो है इन प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, जबकि एक प्रोजेक्ट में 20,000 लोग काम कर रहे थे। और उसके बावजूद यहाँ पर बोला जा रहा है कि मशीनरीज यहाँ पर आई है। वो मशीनरीज भी ठेकेदारों ने लाई है, वो ठेकेदार काम कर रहे हैं और ठेकेदारों ने आगे जो है यहाँ के नौजवानों को यूज़ किया है। आखिर 12-12, 13-13 हज़ार रुपये में वो पूरी अपनी ज़िंदगी जो है गंवा रहे हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हाथ जोड़कर कि किश्तवाड़ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। और यहाँ के दिग्गज नेता जो सुनील शर्मा जी हैं, उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है एज ए किश्तवाड़ी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। कम से कम लोकलिटी का ख्याल रखें, कम से कम आने वाले इंतखाबात का ख्याल रखें। उस वक्त आप लोगों को पेशेमान ना होना पड़े लोगों के सामने, उस वक्त आप मांग ना पाओ वोट लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करता हूं यहाँ की बेरोज़गार नौजवानों की तरफ से कि उन लोगों को एडजस्ट करवाया जाए। अगर आप लोगों को वोट्स की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर जाके यहाँ के लोग जो है आप लोगों को अपना मुतबादिल चुन सकते हैं। वरना आप लोग उन लोगों के घरों में ना जाए जहाँ पर आप लोगों की इज़्ज़त उछाली जाएगी और आपसे सवाल किया जाएगा। तो इसलिए मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बेरोज़गारी से जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो ड्रग्स की तरफ मुब्तला हो रहे हैं, जो बाकी चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, जो डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है गुलाम नबी आज़ाद साहब से भी, क्योंकि इस वक्त वो सीएम की रेस में है। उमर अब्दुल्ला साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और देवेंद्र राणा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और यहाँ के तमाम लीडर, महबूबा मुफ्ती जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, तारा गामी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा और हमारे बीजेपी के रविंदर रैना जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त यूनिटी के प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि लोगों को यहाँ पर जॉब दिया जाना चाहिए। इस वक्त आप लोगों की चलती है इस वक्त। और लास्ट में मैं गवर्नर साहब से भी मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि किश्तवाड़ के बेरोज़गार नौजवानों को और ख़ास करके चिनाब वैली के नौजवानों को इन प्रोजेक्टों में नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है और यहाँ के लोगों को वो तमाम सुविधाएं प्राप्त की जाए जिसकी कल्पना यहाँ के लोगों ने की है। वरना आने वाले समय में यहाँ पर नए नए लीडर्स इंशाअल्लाह ताला उभर के निकलेंगे और अपना हक वो खुद लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी आप हमारे बड़े लीडर हो, बड़े दिग्गज लीडर हो, जिन लीडर्स की बात पूरी दुनिया करती है कि फलानी लीडर होने के बावजूद भी आप लोगों को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ मजाक किया जाता है। तो लिहाजा मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि
गुलाम नबी आज़ाद साहब को आगे आगे आना होगा और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।